Morning, students of class 10th. Today we are going to take the topic the making of nationalism in Europe of your chapter number 1 of history, that is rise of nationalism in Europe. Students, in our early classes we came across with the various reforms conducted by Napoleon Bonaparte as a Napoleonic Code, or we can say Civil Code of 1804. Now, in today's class, we are going to have the making of nationalism in Europe. It means what are the factors or the background related with the making of nationalism or the rise of nationalism in Europe. What are the factors through which need of nationalism required in Europe? Fine, students, let's we talk on the today's topic. Students, if we see a very important question in front of us is explain the political scenario, social political scenario of Europe in mid 18th century. If we are talking about the 18th century, जैसे कि आज हम लोग जो यूरोप को देख रहे हैं, पहला ऐसा नहीं था बेटा. Earlier, there were no nation state, no concept of nation state occurred or emerged in the political scenario or the geographical scenario of Europe. Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, जिसको हम लोग राज्य बोलते हैं. Duchies, we called it as basically the areas that are ruled by the regions ruled by the duke or duchess. And cantons, cantons को हम लोग कहते हैं बेटा, we called it as प्रांत. Cantons whose ruler had their autonomous territories. These people are having, beta, it is a canton, that is the word is called as CANTONS, not not ESE, it is NS. Fine. So it is related with the kingdom, duchies and cantons. बहुत सारे प्रांतों में विभाजित था. Again, I have already told you, just correlate this particular chapter to perspective of nationalism in India. इसको ज़रा ध्यान से देखते रहे. पहले हमारे देश में भी जो हमारा भारत था वो कई प्रांतों में विभाजित था और हर प्रांत के अपने अपने रूलर्स हुआ करते थे. हर प्रांत के अपने अपने क्या होते थे बेटा, उनके अपने कल्चर्स, उनके अपने लैंग्वेजेस, उनके अपने जो हम कह सकते हैं फ्लैग्स होते थे या उनके अपने कलेक्टिव आइडेंटिटीज़, उनके अपने सिंबल्स होते थे. नॉट एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ बट एक सिंबलाइज होते थे कि नहीं, ये जो प्रांत है वो इस राजा के द्वारा रूल आउट किया गया है. सारे राजा उसी तरीके से यूरोप में भी जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड था, वो अल्टीमेटली दे वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ किंगडम्स, नंबर ऑफ डचेस, नंबर ऑफ कैंटन्स और उनके अपने अपने रूलर्स होते थे. एवरी रूलर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, autocratic monarchies thing within the territories of which diverse people, they lived with diverse people, it means number of people lived there, but these people didn't see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Example, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया विभाजित था वो भारत देश का ही, लेकिन इतने प्रांतों में होने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कॉमन कल्चर शो नहीं होता था. ऑल्दो दे वर अंडर, जैसे कि मुग़ल काल में वो कहते नहीं थे कि मुग़ल काल में अगर अकबर है, अकबर के राज्य शासन में जो लोग थे वो अलग अलग प्रांतों में विभाजित थे, उनके अपने अलग अलग लोकल रूलर्स हुआ करते थे, लेकिन वो एक किंगडम के अंतर्गत थे, मुग़ल किंगडम के अंतर्गत थे, है ना. उसी तरीके से ये लोग, दीज पीपल, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, they belongs to different ethnic groups, but they were under the umbrella of a one emperor. Fine, वो कहीं ना कहीं एक emperor से जुड़े हुए थे. तो every region of Europe were divided
among different kingdoms, different duchies, different cantons, and everyone are having their own local rulers with their own administrative rules, economic policies, etc. And we can say that the people also here, they are not showing any sort of collective belongingness, or you can say collective identity or common culture. The people doesn't share about. They spoke different languages, belongs to different ethnic group. Is that clear? स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज Habsburg Empire. The word is called as Habsburg. It is called as Habsburg. Habsburg. HAB Habsburg. BS है ना, यहाँ पे BS को हम इसको M को हम काटेंगे and we called it as Habsburg Empire. ठीक, Habsburg Empire was called as a patchwork. Students, बहुत important question बन रहा है. Why the Habsburg Empire was called as patchwork of many different regions and people? Actually, Habsburg Empire was it was ruled by Austria-Hungary children. It was ruled by Austria-Hungary. Austria-Hungary जो था वो Habsburg Empire, it was controlled by Habsburg Empire was ruled by whom? Austria-Hungary. तो इसको एज अ पैच वर्क कहा जाता है. पैच वर्क का मतलब है बेटा आपने अपने कपड़ों में भी या कभी आपने अपने मदर की साड़ीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं, है ना, कपड़े होते हैं, उनको मिला के एक बेडशीट बनाई जाती है या एक डिज़ाइन है. जिस तरह से अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बना हुआ है, तो एक तरीके से वो पैच वर्क है. लेकिन चूंकि वो कंबाइंड है तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स. लेकिन कभी आप ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल आप मैप को फिल करते हो तो आप अलग अलग रीजन्स को अलग अलग कलर से, तो वो क्या दिखता है बेटा? इट इज़ टर्म टू बी द पैच वर्क, राइट. सो क्वेश्चन आता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर को पैच वर्क क्यों कहा गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया. हैब्सबर्ग एम्पायर एक्चुअली इट वॉज कॉल्ड एज द पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. इट वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया हंगरी. उसको किसने रूल किया था बेटा? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया बेटा, इट इज़ ऑस्ट्रिया हंगरी, राइट. एक डोमिनेंट था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये. तो ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज रूल्ड हैब्सबर्ग एम्पायर. अब क्यों ये पैचवर्क कह रहा है? लेट्स वी टॉक ऑन द फर्स्ट एल्पाइन रीजन्स, लोम्बार्डी, वेनेटिया, हंगरी, गैलिसिया, पीजेंट्स ग्रुप. बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, बहुत सारे रीजन्स हैं. ये बहुत बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर था. जो एल्पाइन रीजन्स था, इट इज़ कंबाइंड ऑफ द टायरोल, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सडेनटेनलैंड एंड बोहेमियाज, ये वो ग्रुप थे, ये वो रीजन्स थे जिसमें जो एरिस्टोक्रेसीज होते थे, वो एरिस्टोक्रेसीज दे स्पोक व्हाट? दे स्पोक द जर्मन लैंग्वेज. एरिस्टोक्रेसीज मीन्स संभ्रांत परिवार जो कहते नहीं है, दे आर द एलाइट ग्रुप्स और वी कॉल्ड इट एज द नोबिलिटीज, द नोबिलिटी, राइट. ये जो लोग थे वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन. Fine students. Then if we are talking about the Lombardy and Venetia, the Lombardy and Venetia was specifically, it was spoken by Italian language. इसमें लोम्बार्डी और वेनेटिया में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जा रही थी? इटालियन. तुम बेटा ध्यान से देखिएगा, हर रीजन्स अलग अलग भाषाओं से डोमिनेट हो रहा था. अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हंगरी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज द मेन here. So half of the population of Hungary, they spoke what? Which language? Magyar. And half of the population spoke what? Different dialects. It means different local जो आम प्रांतीय भाषाएं होती हैं उसको बोला करते थे लोग. गैलिसिया,
गैलिसिया देयर द जो एरिस्टोक्रेसीज थे, the aristocracies, they spoke what? They spoke the Polish language. It means the language which belongs to Poland. So it is what we called it as Polish language. Fine. Then if we are talking about some groups are there besides of these aristocracies, or you can say the nobilities and all. यहाँ पे एक और ग्रुप आया, that groups are called as peasants group. So besides of these group, besides of elite group, besides of landed aristocracies and all, these groups are called as peasants group. ये peasants group या ये peasants people जो थे, they are more in numbers. काफ़ी जो सोसाइटी का आधे से ज़्यादा जो हिस्सेदारी किसकी थी? peasants group की. बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स ये नॉर्दर्न रीजन्स में रहा करते थे. स्लोवेनियंस इन कैरिनियोला, that is Croats in the southern part, Romans east in Transylvania. Beta, all the above differences didn't easily promote a sense of political unity. If we see these groups are divided, it means only a Habsburg Empire was divided among several, you can say, territories, several states, and every states are having their own dominant group. Fine. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं सिग्निफाइज हो रही थी, और बेसिकली बस ये था कि हाँ ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स में अलग अलग लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग थे, पर हम कह सकते हैं कि ये अंडर वन अम्ब्रेला थे, एक एम्परर के अंदर एंड दैट एम्परर वाज कॉल्ड एज जो एम्पायर था, दैट एम्पायर वाज कॉल्ड एज हैब्सबर्ग एम्पायर. ठीक है, लार्जली रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. Thus we can say that Habsburg Empire was called as patchwork because of its diverse people, because of its diverse culture. Fine, students. Then we called it as the next topic, how did nationalism and the idea of nation state emerge. जैसे मैंने कहा कि जो हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो यूरोप है वो टुकड़ों में डिवाइडेड था, यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स भी अपने डिफरेंट लोकल रूलर द्वारा रूल किए जा रहे थे. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके, और क्यों जागृत करना, क्या रीज़न था, क्या लोग सेटिस्फाइड नहीं थे? तो अगर हम ये कहें कि येस द पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडियाज़ ऑफ मोनार्की, यू कैन से दिस इज़ ट्रू, क्योंकि उनको लग रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू भी हम लोगों ने चेक किया कि किस तरीके से जो एक राजतंत्र के खिलाफ लोगों ने अपने आप को, दे स्टूड अप अगेंस्ट द मोनार्कीज, और मोनार्की के अगेंस्ट में खड़े होके, एंड दे वांटेड व्हाट टू ट्रांसफर द पावर ऑफ मोनार्की इनटू द ट्रांसफर ऑफ रूल फ्रॉम मोनार्की टू द पीपल. इट मीन्स दैट the people wanted to establish what? Democratic form of government, यानी people's government. Ultimately ये जो nationalism की भावना आएगी वो किसके लिए आएगी? वो आएगी freedom के लिए, equality के लिए, liberty के लिए, है ना. Now the people thinks about that, no, king and queen are not going to rule over, but who is going to rule over? The people, right? तो इसके लिए अगर हम इसका बैकग्राउंड चेक करें तो बैकग्राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट था कि नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए एक सोसाइटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सिनेरियो आना है. बेटा आज अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी की बात करेंगे. कैसा सोसाइटी कैसा था, है ना. सोसाइटी में इमर्जेंस है नेशनलिज्म का, जो आइडिया ऑफ स्टेट है उसके बहुत सारे फैक्टर्स में भी क्या आपका सोसाइटल
कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लिबरलिज्म, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे. Is that clear, students? So let's we talk on the first one, and today's we are taking the social, right? Students, if we are talking about emergence of nationalism and idea of states, first is called as landed aristocracy. Socially and politically, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट ग्रुप. मैंने पहले ही बोला कि नोबिलिटी यानी कुलीन, यानी कि जो इलाइट ग्रुप्स होते हैं, जो संभ्रांत परिवार होते हैं या जो संभ्रांत थे, दे वर ओनली द रूलर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ दैट एरा. Classes were united by a common way of life. उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी देन द कॉमनर्स. हम जानते हैं कि कुलीन जो वर्ग थे वो किस तरीके से अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को निभाते थे. दे हैव देयर ओन स्टेट्स. बहुत बड़े मैंशंस हुआ करते थे उनके जो कंट्री साइड यानी गांव में, रूरल एरियाज़ में भी उनके बड़े महल हुआ करते थे, और टाउन्स में तो होते ही होते थे. इट मीन्स दे वर हैविंग अ बिग मैंशंस, दे वर हैविंग बिग स्टेट्स. बहुत ज़मीनें हुआ करती थी उनके पास, खूबसूरत घर हुआ करते थे. दे स्पोक बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द पर्पस of diplomacy politically and for the higher society. Usually the people spoke which language? French. Basically the families of these group, मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? Landed aristocracy. Those who are having, it means वो कुलीन परिवार, कुलीन वर्ग जिसके पास बेइंतहा ज़मीनें हुआ करते थे. The families were connected by ties of marriages. Basically ये जो families आपस में मिलती थी वो उनको वो peasants group या अदर जो common people थे उनसे नहीं मिलते थे. वो किन से मिलते थे? वो अपने ही वर्ग के लोगों से मिलते थे. उनको अपने अगर फंक्शंस में मिलना है, मैरिजेस के थ्रू दे कैन गेट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज, although the powerful aristocracy was very less in number, ये लोग काफ़ी, they are very less in number. Aristocracies were very aristocrats were very less in number, but children they were very powerful. अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो ज़मींदार बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, है ना कहीं उनका कंट्रोल किसके ऊपर होता था? पीजेंट्स ग्रुप पे. जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? पीजेंट्स ग्रुप की, है ना. और ख़ासकर जो वेस्ट में था, लैंड वॉज फाउंड बाय द टेनेंट्स. जो टेनेंट्स को जो लैंड्स होते थे, ये लोग अपनी खेती पर पीजेंट्स ग्रुप से काम करवाते थे किराए पे, या जिनकी छोटी छोटी ज़मीनें हुआ करती थी. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग पैटर्न्स थे, दे वर फीचर्ड बाय द वास्ट लैंड. यहाँ पे जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, और उस पे जो काम करने वाले लोग थे उनको सर्व कहलाया जाता था. सर्व का मतलब हो गया बेटा, जिसे हम कह सकते दास, है ना. तो सर्व डॉम का मतलब क्या हो गया? दासत्व, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं स्लेव्स. तो वो दास अल्टीमेटली दे डिड देयर वर्क ऑन द लैंड. वो उनके लैंड्स पे काम करते थे, और उसके एवर्स में इट डिपेंड्स ऑन दीज ग्रुप्स के हाँ वो उनको किस तरीके से वेजेस देते थे या नहीं देते थे, या वेजेस के अगेंस्ट में वो उनको वस्तुएं दिया करते थे, या फसलें दिया करते थे, या खाना दिया करते थे या नहीं. इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट हाँ, हम ये कह सकते थे कि these landed aristocracy dominate the society during that period of time. Then the next is called as commercial. As the name suggests, ये कहीं ना कहीं व्यापारी क्लास था, व्यापार से जुड़ा हुआ था. बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण, यानी औद्योगिकरण आने के कारण, या ट्रेड में जब ग्रोथ हुई ड्यूरिंग द इमर्जेंस इन द
18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो वहाँ पे जब औद्योगिकरण आया तो फैक्ट्री सेटअप होने लगी, प्रोडक्शंस बढ़े, और प्रोडक्शंस बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग आया जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल क्लास। इसका मेन एम था टू गेट द प्रॉफिट, टू गेट प्रॉफिट या बिजनेस करना इनका एक सिर्फ एक एम होता था। उनका एग्जिस्टेंस जो था वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता था, वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट ओनली। उनका मेन ध्येय का क्या था सोसाइटी में कि हमें मार्केट में कोई भी काम करना है, व्यापार करना है, और वी हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स। तो हमने देखा दो सोसाइटी का दो हिस्सा, वन इज कॉल्ड एज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग, और दूसरा जिनके पास ज़मीनें बहुत थी, दूसरा कमर्शियल क्लास, वो कमर्शियल क्लास जिसका ध्येय क्या था, व्यापार करना। द थर्ड इज कॉल्ड एज वर्किंग क्लास। अब चूंकि इंडस्ट्रीज ओपन हुई, सेटअप हुई, है ना, कमर्शियल क्लास ओपन हुआ। अगर इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे काम करने वाले लोग भी थे, तो आया कौन, वर्किंग क्लास। ये वर्किंग क्लास ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, लेकिन स्टार्ट तो वो इंग्लैंड में हुआ, बट यूरोप के अदर नेशंस तक पहुँचते, अदर कंट्रीज तक पहुँचते पहुँचते खासकर फ्रांस और जर्मनी में इसको 19वीं शताब्दी लग गई। यहाँ पे जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो दे गॉट व्हाट, सैलरी, है ना, उनको सैलरी मिला। हाँ, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, सिचुएशन वॉज नॉट गुड, मिजरेबल कंडीशंस थी वर्कर्स की, मशीनी युग था, मशीनों के ही द्वारा काम किया जा रहा था, उनका टाइम बहुत हार्ड था, दे स्पेंट हार्ड टाइम्स ओवर देयर। फिर उनका अपना एक जो कहते हैं ना, एक उनका जब इमर्जेंस हुआ तो दे वर टर्म टू बी द वर्किंग क्लास। धीरे धीरे काम करने से दे गॉट what salary and they improved their living standard, fine। then आया comes to middle class। अगर हम ये कहें middle class, तो middle class is the combination of all। middle class में industrialist भी है, business class भी आया, professionals भी आए। उनका मेन मकसद क्या था, in central and eastern Europe these groups were smaller in numbers till 19th century, they were very less in number, but it was among the educated people, you can say liberal middle class, they are educated, so they emerged the idea of national unity and they wanted to abolish the aristocratic privileges। इन्होंने ही स्टार्ट किया द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। क्यों, बिकॉज दे वर एजुकेटेड, प्रोफेशनल्स थे, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। व्यापारी संगठन भी, संगठन की बात करूँ, व्यापारी वर्ग भी, क्योंकि हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म की ज़रूरत पड़ी, किस तरीके से फ्रीडम की ज़रूरत पड़ी। हर ने अपने अपने हिसाब से फ्रीडम को सोचा, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय थे, उनके नज़र में था कि ये इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए, ये प्रिविलेज बाय बर्थ जैसी चीज़ें क्यों हो सोसाइटी में। उन्होंने इंडिविजुअल, उन्होंने लिबरल वर्ड को इस्तेमाल किया। द वर्ड इज़ कॉल्ड एज लिबरलिज्म, उदारवादी नीति जिसको हम लोग कहते हैं, यानी उदारता की उनको, उनके नज़र में कि नो वन इज़ अबव द लॉ, नो वन इज़, एवरीवन इज़ इक्वल, इक्वलिटी शुड बी इंश्योर, और इंडिविजुअल की अपनी पहचान होती है, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी का बेस क्या होता है, इंडिविजुअल। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो कहीं ना कहीं अगर एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म आ रहा है और आइडिया ऑफ स्टेट, उसमें काफ़ी हद तक जो हिस्सेदारी थी वो लिबरल मिडिल क्लास पीपल की थी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? टुमारो आई वुड लाइक टू टेक योर क्लास बेस्ड ऑन लिबरलिज्म, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, और हम लोग कंजर्वेटिव रिजीम्स की भी बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो लिबरल वेयर द
ideas are flexible and able to accept the new changes occurred in the society. Fine, students. So, tomorrow, till then, God bless you, children. Watch the video very carefully, and if there is any problem related with that, you can ask me. Fine. Till then, take care, students.